یہ کہانی ہے ایک لڑکے کی جس کا نام تھا احمد۔ احمد ایک عام سا نوجوان تھا۔ وہ اسکول جاتا، دوستوں کے ساتھ کھیلتا، موبائل استعمال کرتا اور ہنسی مذاق میں وقت گزار دیتا۔ نماز کبھی پڑھ لیتا، کبھی چھوڑ دیتا، قرآن کبھی جمعہ کے دن کھول لیتا، پھر کئی دن نہیں۔ اسے لگتا تھا ابھی تو عمر ہی کیا ہے، بعد میں سب ٹھیک کر لوں گا۔ لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ ایک چھوٹا سا واقعہ اس کی پوری زندگی بدل دے گا۔ پہلا منظر مسجد کا بزرگ۔ ایک دن عصر کے وقت وہ گلی سے گزر رہا تھا۔ مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ امام صاحب، جن کا نام تھا حافظ عبدالرؤف، دروازے پر کھڑے تھے۔ وہ محلے کے سب بچوں کو پیار سے نماز کی طرف بلاتے تھے۔ انہوں نے احمد کو دیکھا اور مسکرا کر کہا، بیٹا احمد، آؤ نماز پڑھ لو۔ 5 منٹ لگیں گے، لیکن فائدہ پوری زندگی کا ہوگا۔ احمد نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، جی انکل، ابھی کام ہے، بعد میں آؤں گا، اور وہ چلا گیا۔ حافظ صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، یا اللہ، اس بچے کو ہدایت دے دینا۔ دوسرا منظر ایک سوال۔ اگلے دن اسکول میں اسلامیات کی کلاس تھی۔ استاد نے سوال پوچھا، اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہو تو ہم کیا کریں گے؟ کلاس میں خاموشی چھا گئی۔ احمد کے دل میں عجیب سا خیال آیا، اگر واقعی آج آخری دن ہو تو کیا وہ خوش ہوگا؟ کیا وہ مطمئن ہوگا؟ وہ سوال اس کے دل میں اٹک گیا۔ تیسرا منظر دوست کا حادثہ۔ کچھ دن بعد اس کے دوست فہد کا ایک چھوٹا سا حادثہ ہو گیا۔ الحمدللہ وہ بچ گیا، مگر چند دن اسپتال میں رہا۔ احمد جب اسے دیکھنے گیا تو فہد نے کہا، یار احمد، جب میں گرا تھا نا تو مجھے لگا بس اب سب ختم۔ اس وقت مجھے اپنی نمازیں یاد آئیں، اپنی غلطیاں یاد آئیں۔ احمد خاموش ہو گیا۔ پہلی بار اسے لگا کہ زندگی واقعی غیر یقینی ہے۔ چوتھا منظر قرآن کی آیت۔ ایک رات وہ موبائل چلا رہا تھا، اچانک اس کا نیٹ بند ہو گیا۔ بور ہو کر اس نے شیلف سے قرآن اٹھا لیا۔ پہلا صفحہ کھولا تو ایک آیت پر نظر پڑی، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وہ چونک گیا، اللہ محبت کرتا ہے مجھ سے بھی؟ اگر میں بدل جاؤں تو؟ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ پانچواں منظر پہلا سجدہ۔ اگلی فجر کے وقت اس کی آنکھ کھل گئی، پتہ نہیں کیوں، مگر دل نے کہا اٹھ جاؤ۔ وہ وضو کر کے مسجد پہنچ گیا۔ نماز میں جب اس نے پہلا سجدہ کیا تو دل ہلکا ہو گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، یا اللہ، میں واقعی بدلنا چاہتا ہوں، میری مدد کر دے۔ چھٹا منظر آزمائش۔ تبدیلی آسان نہیں ہوتی۔ دوستوں نے مذاق اڑایا، مولوی بن گیا ہے کیا؟ کسی نے کہا 2 دن کی بات ہے، پھر ویسا ہی ہو جائے گا۔ احمد کے دل کو چوٹ لگی، لیکن اسے حافظ عبدالرؤف کی بات یاد آئی، فائدہ پوری زندگی کا ہوگا۔ اس نے ہمت نہیں ہاری۔ ساتواں منظر خدمت۔ رمضان آیا۔ احمد نے مسجد میں صفائی شروع کر دی، افطار تقسیم کرنے لگا، بوڑھے لوگوں کو سڑک پار کرانے لگا۔ لوگ حیران تھے، یہ وہی احمد ہے؟ حافظ صاحب نے اسے گلے لگا لیا، بیٹا، تم نے اپنے رب کا راستہ چن لیا ہے، یہی اصل کامیابی ہے۔ 8واں منظر اصل کامیابی۔ نتائج کا دن آیا۔ احمد کے نمبر اچھے آئے، مگر اس بار وہ صرف نمبروں سے خوش نہیں تھا۔ وہ جان چکا تھا کہ اصل کامیابی کیا ہے۔ کامیابی صرف دنیا کی نہیں، کامیابی دل کے سکون کی ہے، کامیابی اللہ کی رضا کی ہے۔ اختتام۔
कई साल बाद अहमद खुद बच्चों को मस्जिद में बुलाता था। वो कहता, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, लेकिन याद रखो वापसी का रास्ता हमेशा खुला है। और वो मुस्कुराकर आसमान की तरफ देखता। कहानी का पैगाम, नमाज कभी मत छोड़ो, तौबा में देर नहीं करनी चाहिए। सच्चे दिल से मांगो, अल्लाह जरूर मदद करता है। असल कामयाबी आखिरत की कामयाबी है। कई साल गुजर चुके थे। अहमद अब बच्चा नहीं रहा था। इसके चेहरे पर हल्की सी दाढ़ी आ चुकी थी, आंखों में संजीदगी और दिल में सुकून था। मोहल्ले के लोग अब उसे इज्जत की नजर से देखते थे। एक दिन हाफिज अब्दुल रऊफ साहिब ने उसे मस्जिद के कमरे में बुलाया। बेटा अहमद, अब तुम बड़े हो गए हो, मैं चाहता हूं कि तुम बच्चों को कुरान पढ़ाया करो। अहमद चौंक गया। मैं कैसे? हाफिज साहिब मुस्कुराए। जिसने खुद रास्ता पाया हो वही दूसरों को रास्ता दिखा सकता है। अहमद के दिल में हल्की सी घबराहट हुई। क्या वो इस काबिल है? क्या वो वाकई किसी को दीन सिखा सकता है? लेकिन इसने हाँ कर दी। 10वां मंजर, पहली क्लास। पहले दिन 5 छोटे बच्चे मस्जिद के कमरे में बैठे थे। एक शरारती सा बच्चा, उमर नाम था, मुसलसल हंस रहा था। एक और बच्चा बार बार मोबाइल मांग रहा था। अहमद ने गहरी सांस ली। उसे अपना बचपन याद आ गया। वो भी तो ऐसा ही था। उसने सख्ती नहीं की। वो नरमी से बोला, देखो मैं भी तुम जैसा था, लेकिन अगर हम अभी से अच्छे बन जाएं ना, तो जिंदगी आसान हो जाती है। बच्चे खामोश हो गए। इस दिन पहली बार अहमद को एहसास हुआ, हिदायत मिलना नेमत है और हिदायत बांटना इससे भी बड़ी नेमत। 11वां मंजर, एक आजमाइश फिर से। जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। अहमद को एक बड़ी कंपनी में नौकरी का मौका मिला। तनख्वाह बहुत ज्यादा थी, लेकिन शर्त यह थी कि उसे दूसरे शहर जाना होगा और मस्जिद की क्लास छोड़नी होगी। वो सारी रात जागता रहा। दिल कहता, मौका हाथ से न जाने दो। ज़मीर कहता, तुमने वादा किया था। अगली सुबह वो फजर के बाद मस्जिद में बैठा रहा। हाफिज अब्दुल रऊफ साहिब इसके पास आए। बेटा, परेशान हो? अहमद ने सब बता दिया। हाफिज साहिब ने आहिस्ता से कहा, फैसला वो करो जिससे दिल में सुकून आए। रिस्क देने वाला अल्लाह है। वो जुमला अहमद के दिल में उतर गया। 12वां मंजर, फैसला। 2 दिन बाद अहमद ने कंपनी को इनकार कर दिया। दोस्तों ने कहा, पागल हो गए हो, ऐसी नौकरी कौन छोड़ता है? लेकिन अहमद के दिल में अजीब सा सुकून था। चंद हफ्तों बाद इसी शहर में एक और नौकरी मिली। कम तनख्वाह थी, लेकिन वक्त ऐसा था कि वो मस्जिद की क्लास जारी रख सकता था। अहमद मुस्करा दिया। इससे यकीन हो गया, जब इंसान अल्लाह के लिए छोड़ता है, अल्लाह इससे बेहतर अता करता है। 13वां मंजर, माँ की दुआ। एक रात अहमद की वालिदा बीमार हो गई। वो अस्पताल में बैठा माँ का हाथ पकड़े दुआ कर रहा था। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह, मैंने कभी उनकी कदर नहीं की। अगर ये ठीक हो जाएं तो मैं और ज्यादा खिदमत करूंगा। इसे याद आया कि बचपन में माँ कितनी दफा इसे नमाज के लिए जगाती थी। चंद दिन बाद वालिदा की तबीयत संभल गई। डॉक्टर ने कहा, खतरा टल गया है। अहमद ने सजदा शुक्र अदा किया। इस दिन इसने समझा, वालिदैन की खिदमत भी इबादत है। 14वां मंजर, उमर की कहानी। वही शरारती बच्चा उमर अब नौजवान हो चुका था। एक दिन वो परेशान हालत में अहमद के पास आया। भाई, मैं बहुत गुनाह कर चुका हूं। अल्लाह मुझे मुआफ करेगा। अहमद की आंखों में नमी आ गई। वो मुस्कुराया। मैं भी कभी यही सोचता था, लेकिन अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। सच्ची तौबा करो,
दरवाजा बंद नहीं होता। उम्र रोने लगा। इस दिन अहमद को एहसास हुआ, कहानी अब उसकी नहीं रही, अब वो किसी और की हिदायत का जरिया बन चुका था। 15वां मंजर, अचानक खबर। एक सुबह फजर से पहले फोन आया। हाफिज अब्दुल रऊफ साहिब की तबीयत बहुत खराब थी। अहमद दौड़ता हुआ उनके घर पहुंचा। हाफिज साहिब बिस्तर पर लेटे थे, चेहरा कमजोर मगर आंखें रोशन। उन्होंने अहमद का हाथ पकड़ा। बेटा, मस्जिद तुम्हारे हवाले। अहमद की आंखों से आंसू बहने लगे। नहीं हाफिज साहिब, अब ठीक हो जाएंगे। लेकिन हाफिज साहिब मुस्कुराए। मेरी फिक्र ना करो, तुम वदा करो बच्चों को दीन सिखाते रहोगे। अहमद ने रोते हुए सर हिला दिया। चंद घंटों बाद मोहल्ले में खबर फैल गई, हाफिज अब्दुल रऊफ साहिब इस दुनिया से रुखसत हो गए। 16वां मंजर, जिम्मेदारी का बोझ। जनाजे के बाद मस्जिद खामोश थी। अहमद मेहराब के पास खड़ा था, वही जगह जहां कभी वो नजर चरा कर निकल जाता था। आज लोग उसे देख रहे थे। किसी ने कहा, अब आप ही आगे बढ़ेंगे। उसका दिल कांप गया, लेकिन इसने कदम आगे बढ़ाया और पहली बार उसने अजान दी। आवाज में हल्की सी लर्जिश थी, मगर दिल में इखलास था। 17वां मंजर, अंदर की लड़ाई। इमामत आसान नहीं होती। लोग तनकीद भी करते। कोई कहता आवाज आहिस्ता है, कोई कहता बयान लंबा है। कभी कभी अहमद थक जाता। एक रात वो तन्हा मस्जिद में बैठा था। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, या अल्लाह, मैं कामिल नहीं हूं, लेकिन नियत साफ है, मुझे साबित कदम रख। दिल फिर हल्का हो गया। 18वां मंजर, असल कामयाबी का मतलब। साल गुजर गए, मस्जिद आबाद हो गई, बच्चों की क्लास बढ़ गई, मोहल्ले में तब्दीली आने लगी। एक दिन एक बुजुर्ग ने कहा, अहमद साहिब, अपने मोहल्ला बदल दिया है। अहमद मुस्करा दिया। इसे याद आया, वो भी कभी बदलने की जरूरत में था। आरजी इख्तिताम जारी रहेगा। एक शाम अहमद वही गली में खड़ा था जहां कभी उसने हाफिज साहिब को नजरअंदाज किया था। आसमान पर सूरज डूब रहा था। उसने आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तेरा शुक्र है। अगर इस दिन तो मुझे न झंझोड़ता तो शायद मैं आज कहीं और होता। दूर मस्जिद से अजान की आवाज आई। वो मुस्कुराया और मस्जिद की तरफ चल पड़ा।